myself Khyati Vyas from JNP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject SS. We are starting with new chapter, chapter number 3, Life in the Northern Mountains. And this is my session number 1 for this chapter. So kids, in our previous session, that is the Northern Mountains, I explained to you regarding 3 different ranges in the Northern Mountains. We also talked about the Himalayas, the Karakoram range, the Purvachal hill range, all these things. What is a mountain pass, how they are useful. Then we also discussed the importance of the Northern Mountains to India. 3 different ranges, the Himadri, Himachal and the Shivaliks. All these things we have already discussed. In this chapter, that is chapter number 3, Life in the Northern Mountains, the chapter's name itself, it gives you an idea that we are going to learn about how people are living there, how animals live there, what kind of vegetation is done there, plants, which plants grow, all these things. So, to start with the chapter, first let us see the vocabulary words, means the difficult words which you might come across while dealing with this chapter. So to know the meaning of these words correctly, we are going through the PPT of vocabulary words, in which I have shared some related pictures and the meaning of the word. So, it will be easier for you when you come across these words during the chapter. Okay? So, let us start discussing the vocabulary word first, and then we will start with the chapter. In this chapter, as I introduced to you, we are going to learn about the life of the people living in this northern mountain region. Clear? So, let's move on to the PPT now. Chapter number 3, Life in the Northern Mountains. First word, scenic. Scenic means views of beautiful natural scenery. Views of beautiful natural scenery. Here you can see the drawing which shows a beautiful scenery of all the natural things like rainbow, grass, river, tree. So it is called scenic. Scenic. Next word, emperor. Emperor. A man who rules an empire. A man who rules an empire. See here in the picture, you can see a person who looks very royal. You can say that he is the ruler or the king. He rules the whole empire. अपने पूरे राज्य को चलाता है एक राजा. So he is an emperor. What is he called? He is called an emperor. A man who rules an empire. Empire means राज्य. पूरे राज्य को जो चलाता है उसे emperor कहते हैं. Next, snow covered. Snow covered means covered with snow. फुल्ली स्नो से कवर्ड, बर्फ से ढका हुआ हो तो उसे स्नो कवर्ड कहते हैं. इन द पिक्चर यू कैन सी ऑल द ट्रीज, द लैंड, एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो. सो इट इज स्नो कवर्ड. नेक्स्ट, टूरिस्ट. टूरिस्ट means a person who is traveling to a place for pleasure. A person who is traveling to a place for pleasure.
एक ऐसा इंसान जो अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करता है फॉर प्लेजर, मतलब मज़े लेने के लिए, आनंद लेने के लिए. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ टूरिस्ट. हु इज ही? He is a tourist. Next, sparse vegetation means small in quantity. In the picture you can see there is a big land area, but only few small shrubs are grown here and there. Very small in quantity, बहुत कम आपको shrubs दिखाई दे रहे हैं, ग्रासेस दिखाई दे रहे, बट बहुत कम है. जगह बहुत बड़ी है बट वहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हुआ है. सो इट इज़ कॉल्ड स्प्रास वेजिटेशन. नेक्स्ट, शिकारास. शिकारास मीन्स हाउस बोट. हाउस बोट, एक बोट के ऊपर, बोट नॉर्मली ये हाउस बोट की बोट जो होती है वो नीचे से फ्लैट होती है, तो उस फ्लैट सरफेस वाली बोट के ऊपर एक हाउस बना हुआ होता है, जिसको कश्मीर की तरफ अगर हम वहाँ की हाउस बोट को शिकारास कहते हैं. क्या कहते हैं? शिकारास. सी इन द पिक्चर यू कैन सी इट, राइट? ओके. नेक्स्ट, फिरान. Firan means long, loose woolen coats worn by people in Kashmir. Long, loose woolen coats worn by people in Kashmir. एकदम लंबे और एकदम लूज, फिटिंग वाले नहीं होते, ढीले होते हैं, लूज. ये वूल से बने होते हैं, वूल से. सो वुलन कोट्स जो कश्मीर के लोग पहनते हैं. सी इन द पिक्चर यू कैन सी दैट, करेक्ट? सो दे आर कॉल्ड फिरान्स. नेक्स्ट, स्कीइंग. स्कीइंग मीन्स एक्ट और स्पोर्ट ऑफ ग्लाइडिंग ऑन स्कीज. स्कीज मतलब अ पेयर ऑफ लॉन्ग फ्लैट नैरो पीस ऑफ वुड और अ प्लास्टिक फॉर ग्लाइडिंग ओवर स्नो. मतलब एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें दोनों पैरों के नीचे, दोनों पैरों को एक फ्लैट पीस ऑफ वुड या प्लास्टिक के ऊपर पहना जाता है, एंड देन आप स्नो के ऊपर उसे स्लाइड करते हो, ग्लाइड करते हो. दैट स्पोर्ट इज कॉल्ड स्कीइंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्कीइंग. Next, kangri. Kangri, a small pot filled with lightened charcoal used to keep body warm. A small pot filled with lightened charcoal used to keep body warm. एक छोटा पॉट जैसा होता है जिसके अंदर चारकोल, मतलब आपके जो कोयले होते हैं, कोलसा, गुजराती में उसे कोलसा कहते हैं, वो जगे हुए होते हैं, उसमें आग होती है. फ्लेम्स नहीं निकलती है मगर उन चारकोल्स में आग होती है, फ्लेम नहीं होती है. सी हियर यू कैन सी चारकोल लाइट किए हुए हैं, रेड कलर के दिख रहे हैं, बट उसमें आग नहीं निकल रही है, बाहर से फ्लेम नहीं निकल रही है. तो इन चारकोल्स को भरा हुआ होता है, और ये किस लिए होता है? टू कीप बॉडी वार्म, अपने बॉडी को वार्म, गर्म रखने के लिए. कश्मीर की तरफ बहुत ठंडी होती है ना, इसीलिए कांगरी को, बॉडी को वार्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, खावा. खावा, अ स्पेशल कश्मीरी टी. एक स्पेशल टाइप की टी होती है जो कश्मीर में पाई जाती है, इसको खावा कहते हैं. क्या कहते हैं? खावा. वीविंग. वीविंग मीन्स द क्राफ्ट और एक्शन ऑफ फॉर्मिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग थ्रेड. द क्राफ्ट और एक्शन ऑफ फॉर्मिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग थ्रेड. फैब्रिक यानी कि कपड़ा,
कपड़ा बनाने का एक क्राफ्ट होता है जिसमें थ्रेड्स को इंटरलेस किया जाता है। थ्रेड्स यानी धागों को इंटरलेस, सी इन द पिक्चर, कुछ थ्रेड्स को स्ट्रेट रखा गया है या यू कैन से वर्टिकल, कुछ को हॉरिजॉन्टल रखा गया है और फिर इनको इंटरलेस किया जाता है, एक के अंदर से दूसरे को पिरोना। करेक्ट? सो दिस एक्ट in which the fabric is made by interlacing thread is called weaving. Next, miniature painting. Miniature painting means very small painting. Miniature मतलब बहुत ही small. See in the picture, कितनी छोटी सी पेंटिंग दिखाई गई है। So it is called a miniature painting. What is it called? Miniature painting. Next, pilgrimage centers. Pilgrimage centers means places where people travel to pray. Places where people travel to pray. ऐसी जगह जहाँ पर लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड पिलग्रिमेज सेंटर्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? पिलग्रिमेज सेंटर्स। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट मीन्स एक्टिविटी involving the making of decorative objects by hand. Activity involving the making of decorative objects by hand. एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसा काम जिसमें हाथ से डेकोरेटिव आइटम्स को बनाया जाता है, they are called handicrafts. They are called handicrafts. Clear? So here we come to the end of vocabulary words. Now let's move to the general video lecture. Okay guys, hope you enjoyed the PPT and you also understood the difficult words, the meanings of that, and you might have also seen the pictures of few things that you will come across in this chapter. Now let's begin the chapter. That is the life in the northern mountains. Here we are going to learn regarding Jammu and Kashmir and Ladakh. Jammu and Kashmir and Ladakh. Now Jammu and Kashmir are the northernmost state in India. इंडिया में सबसे नॉर्थ में जो स्टेट आता है वो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. So now, since they are towards the north of India, they are included in the northern mountains. ये northern mountains में included है. Jammu and Kashmir and Ladakh are the two new union territories in the northernmost region of India. Union territories. ये इंडिया की recently जो ऐड किए हुए यूनियन टेरिटरीज में से हैं. What do you mean by union territories? See, the country India is divided into state, correct? Like for example, our state is Gujarat. Same way you have Maharashtra, Rajasthan, you have Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. All these are different states. And then you have also union territories. What are union territories? See, for example, state. Every state has their own state government. हर एक स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. Yes. उसी तरह कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट नहीं बट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेवल पे पूरे इंडिया के लेवल पे जो काम करती है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. जो पूरे कंट्री को रूल करे उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं.
और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में अगर कोई टेक केयर करता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दीज यूनियन टेरिटरीज आर सच एरियाज विच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यूनियन टेरिटरीज ऐसे एरियाज या ऐसे पार्ट होते हैं कंट्री के जिनको स्टेट की तरह स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते हैं कंट्रोल करने के लिए। दे आर टेकन केयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इटसेल्फ। इनका केयर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। सो ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दो पहले हमारे कंट्री के यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूडेड नहीं थे, बट रिसेंटली दे हैव एडेड देम टू आवर यूनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंटली इनको हमारी यूनियन टेरिटरीज में ऐड किया गया है। द रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये यहाँ की सीनिक ब्यूटी मतलब नेचुरल ब्यूटी जो है उसके लिए बहुत फेमस है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर टूरिस्ट दे विजिट दिस प्लेस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। खूबसूरत इतना है कि यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। सीनिक ब्यूटी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू मीनिंग ऑफ सीनिक, करेक्ट? द मुगल एम्परर जहांगीर even described Kashmir as heaven on the earth। मुगल एम्परर, मुगलों के राजा थे जिनका नाम था जहांगीर। उन्होंने कश्मीर को हेवन ऑन द अर्थ यानी धरती के ऊपर एक स्वर्ग है इस तरह से डिस्क्राइब किया है। धरती के ऊपर का स्वर्ग। हम लोग नॉर्मली हेवन यानी कि स्वर्ग के बारे में अगर सोचे तो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हम इमेजिन करते हैं। सेम वे कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल दैट जहांगीर डिस्क्राइब्ड इट एज द हेवन ऑन द अर्थ। कहीं हेवन में जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे फील आएगी कि आप स्वर्ग में पहुंच गए, हेवन में पहुंच गए। सो इट इज नोन एज हेवन ऑन द अर्थ। एंड हु डिस्क्राइब्ड इट एज हेवन ऑन द अर्थ? It was the Mughal Emperor Jahangir. The region can be divided into 3 parts. इस पूरे रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। That is जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख। 3 अलग अलग प्लेसेस हैं। एक है जम्मू, एक है कश्मीर और एक है लद्दाख। The capital of Jammu and Kashmir is Jammu in winter. जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों के कैपिटल्स विंटर में एंड समर में अलग अलग है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टेट या हर एक यूनियन टेरिटरी के एक फिक्स्ड कैपिटल्स ही होते हैं। गुजरात है तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। डज इट चेंज? क्या वो चेंज होते रहता है? नो, इट डजंट चेंज। बट जम्मू कश्मीर हैज 2 डिफरेंट कैपिटल्स। जम्मू कश्मीर जो है उसके 2 कैपिटल है। कैसे? दैट इज जम्मू ड्यूरिंग द विंटर। विंटर सीजन में इसका कैपिटल जम्मू बन जाता है एंड श्रीनगर ड्यूरिंग द समर। एंड समर सीजन में इसका कैपिटल श्रीनगर, समर सीजन में श्रीनगर कैपिटल है। विंटर में जम्मू कश्मीर का कैपिटल है जम्मू एंड समर सीजन में इट इज श्रीनगर। क्लियर? सो हाउ टू रिमेंबर दिस? रिमेंबर समर एज एस, समर, एंड श्रीनगर, श्रीनगर का भी एस होता है, इट इज सो समर कैपिटल इज श्रीनगर एंड विंटर इट इज जम्मू। क्लियर? सो दिस वे यू कैन रिमेंबर दिस, समर श्रीनगर and winter it is Jammu, the capital of Jammu and Kashmir. Now the capital of Ladakh is Leh. Ladakh का कैपिटल कौन सा है? It is Leh. Jammu and Kashmir is famous for its snow-covered mountain peaks. जम्मू कश्मीर में क्या फेमस है? Snow-covered mountain peaks. Then beautiful valleys, lakes and rivers and evergreen trees like pine and chinar.
एवरग्रीन ट्रीज भी है, लेक भी है, वैली भी है, बहुत अच्छे से माउंटेन पीक्स हैं जो स्नो कवर्ड रहते हैं। इन सारी चीजों के लिए जम्मू कश्मीर बहुत फेमस है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हियर टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रीजन। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। The Ladakh region has very sparse vegetation and is also known as coldest desert or the cold desert. Sparse vegetation मतलब बहुत कम vegetation है, क्योंकि स्नो कवर्ड एरियाज होने की वजह से यहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता है, ज्यादातर कुछ नहीं ग्रो होता है और इस वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। जैसे डेजर्ट में कुछ ग्रो नहीं होता है, रण में, डेजर्ट यानी कि रण में जैसे कुछ ग्रो नहीं होता है, उसी तरह ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा डेजर्ट। डेजर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता है। So, the Ladakh region is also the cold desert. However, many tourists from all over the world visit the region to enjoy the unique landscape. But फिर भी लद्दाख बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो लैंडस्केप है वो बहुत यूनिक है। लैंडस्केप मतलब कि देखने लायक सीन, जो स्नो कवर्ड पूरा एरिया होता है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, इसीलिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। द इंडस, तावी, रावी, चेनाब, झेलम, जानकर, शोंक एंड न्यूग्रेन are the major rivers that flow through the two union territories. ये सारी अलग अलग नदियां हैं जो इन दो यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दो यूनियन टेरिटरीज से फ्लो होती है। बहुत सारे रिवर्स है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्दर्न माउंटेन्स का ही पार्ट है और नॉर्दर्न माउंटेन्स में से जो स्नो मेल्ट होके पानी बनता है और ये पानी रिवर्स में फ्लो होने लगता है, इस वजह से बहुत सारा पानी होता है और बहुत सारी रिवर्स भी है। द दाल, वुलर, पोंगो, तोस एंड सम फेमस लेक्स ऑफ दिस रीजन, ये सारे फेमस लेक भी हैं, तालाब। द वोलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। द वोलर लेक या वोलर लेक ये एक फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का और एशिया। इट इज अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। पूरे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक या वोलर लेक। द दाल लेक इज पॉपुलर फॉर द ब्यूटिफुल हाउस बोट्स। दाल लेक जो कश्मीर में है, यहाँ हाउस बोट्स बहुत फेमस है। बोट हाउस या हाउस बोट आप कह सकते हो। दे आर ऑल्सो नोन एज शिकारास, इनको शिकारास भी कहा जाता है। दे हैव फ्लैट बॉटम्स। इन शिकारास के बॉटम जो है वो फ्लैट होते हैं एंड आर वुडन बोट्स, ये वुडन बोट्स होते हैं। तो ये बहुत फेमस है। आपने अगर कहीं टीवी पर देखा है तो आपने देखा होगा शिकारास छोटे छोटे भी होते हैं जिन पे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स भी बेचने के लिए कश्मीर के लोग जाया करते हैं। करेक्ट? तो these are called shikaras, house boats. All these things are very famous in Dal Lake and it is in Kashmir. So here we keep our session today. We end our session over here. Next session we will start with the places to visit in Jammu and Kashmir and Ladakh, the culture of the people there, the occupation of the people. All these things we will learn in the next session. So today's session we have started with Jammu and Kashmir and Ladakh. But the chapter is regarding life in the northern mountains. तो northern mountains में सिर्फ जम्मू कश्मीर and लद्दाख नहीं आता है. This is just the beginning. उसके बाद हम बहुत सारे अलग अलग states हैं जिनको northern mountains में consider करते हैं. तो आज के सेशन में हमने जम्मू कश्मीर का इंट्रोडक्शन देख लिया है. नेक्स्ट सेशन में हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों
को वहाँ क्यों घूमने के लिए बहुत पसंद है, देन व्हाट इज द कल्चर ओवर देयर, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन मीन्स लोग वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस चैप्टर टिल वेयर आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन दिस वीडियो. Along with this video, I am sending the PDF that is homework. Read the instructions properly and then do your work. Okay? So if you have liked this video, please click on the like icon. Bye. See you in the next session.